ڈیر اسماعیل خان کے جو عوام کے سلگتے ہوئے مسائل ہیں، تو آٹا جو ہے اس وقت ہماری بنیادی ضرورت ہے. ہمارے پاس ضلع میں ٹوٹل 13 فلور مل ہیں. ہمارا تو دار و مدار پنجاب پر ہے. ان ملوں میں بعض ملیں ایسے بھی ہیں جو صرف جب یہ ذخیرہ آپ کی جانب سے جاری ہوتا ہے تو وہ فعال ہوتی ہیں، ادروائز وہ پورا سال بند رہتی ہیں. جب کہ فزیکلی گراؤنڈ کے اوپر جایا جائے تو وہاں یہی صرف 3 سے یا 4 بلکہ 2 پہلے تو 2 تھے، 3 یا 4 ملز ہوتے جو لیکن صرف ایک کوٹا سسٹم ہے ایک بزنس کا پروفٹ کمانے کا. وہ کہا یہ جاتا ہے الزامات لگائے جاتے ہیں محکمہ فوڈ کی ملی بھگت کے ساتھ کروڑوں روپے کماتے جو بل مالکان ہوتے ہیں. کبھی جو عوام الناس ہے عوام ہے کبھی ان سے بھی معلوم کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو آپ آٹا کھا رہے ہیں جو گورنمنٹ کے جو ریٹ ہے کیا واقعی آٹا جو ہے اس کا معیاری بھی ہے یا نہیں ہے. میرے خیال سے تو جو ہمارے تک شکایات آتی ہیں اور کئی بار ہم نے اس کے بعد بتائی ہے شاید میرے خیال انسان نہیں کھا سکتے لیکن مجبوری ہے مہنگائی ہے مجبور پہ وہ کھاتے ہیں. شاید اگر آپ کو بھی استعمال کا کہا جائے یا آپ کے ڈپارٹمنٹ کے اہلکاران کو یا ہمارے جو ضلع انتظامی افسران ہیں دیگر ڈپارٹمنٹ شاید وہ آٹا کھانا بھی پسند نہ کریں اس کی اگر روٹی بنائی. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں زبیر شاہین اور میں ہوں سید اطہر شاہ. آپ دیکھتے ہیں دمان نیوز ٹی وی کی جانب سے اور جو ہمارا میڈیا گروپ ہے مختلف ہمارے ساتھ چینلز ہیں دوست احباب ہوتے ہیں. کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ ڈیر اسماعیل خان کے جو عوام کے سلگتے ہوئے مسائل ہیں اور جس محکمے سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں جو ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں وہ آپ تک ہم ان کی جو آواز ہے پہنچانے کی اپنے چینلز کے ذریعے جو ہم کوشش کرتے ہیں. تو ماہ رمضان بھی اگر کہا جائے کل پہلا روزہ بھی ہے تو بنیادی طور کے اوپر اگر جو مسائل کی ہم بات کریں گے جو ماہ رمضان میں ہے وہ اشیاء خرد نوش وغیرہ کے حوالے سے ہوتی ہے کوالٹی کوانٹٹی کے حوالے سے. تو آج ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر ہیں ارمان خان صاحب تشریف رکھتے ہیں بلکہ ہم ان کے ہاتھ تشریف رکھتے ہیں اگر یہ الفاظ کہا جائے یہ بہتر ہے. تو شاہ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں پروگرام کو باقاعدہ آغاز کرتے ہیں؟ جی سب سے پہلے تو میں امان صاحب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا ہے. زبیر بھائی یہ یہاں پہ امان صاحب جو ہیں ہمارے بحثیت ہے جو ان کی اگر ہم محکمہ فوڈ کے حوالے سے خدمات پر نظر ڈالیں تو یہ بحثیت انسپیکٹر بھی یہاں کام کر چکے ہیں، اے ایف سی بھی کام کر چکے ہیں اور آج یہ ڈی ایف سی کے عہدے پر یہاں پہ ایکسپیرینس سر کا زیادہ ہے تو جی امید ہے لوگوں کو بھی فوائد حاصل ہوں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ خصوصاً اشیاء خرد و نوش کے حوالے سے جہاں ان کی زیر اثر جو ہوتے ہیں اشیاء خرد و نوش جو ہوتی ہیں تو آٹا جو ہے اس وقت ہماری بنیادی ضرورت ہے غریب لوگوں کی. پہلے آغاز ادھر سے کر لیں سر جو آپ کا ماہ رمضان کے حوالے سے کوئی پلان ہے اس سے تھوڑا سا اس کے اسٹارٹ آپ نے اس سے کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. نام میرا امان خان ہے. جس طرح وضاحت کی گئی میں ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر کے عہدے پر تعینات ہوں یہاں ڈیرہ اسماعیل خان میں. اور رمضان کے حوالے سے اور خصوصی طور پر آٹے کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ صوبائی حکومت نے عوام کو ریلیف دینے کے لیے ایک سسٹم متعارف کیا ہے جس میں ہم فلور میلوں کو باقاعدہ پاپولیشن کے لحاظ سے ہر ضلع کو کے فلور میلوں کو گندم ایشو کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر. صرف اتوار کے دن چھٹی ہوتی ہے باقی پورا ہفتہ چلتا ہے. اور آج جو ہم گندم جاری کر رہے ہیں ہمارے پاس ضلع میں ٹوٹل 13 فلور مل ہیں جو کہ آپریشنل حالت میں ہیں. آپریشنل سے مراد یہ ہے کہ وہ ان میں سے کچھ ملیں پہلے چلی بھی نہیں ہیں اور کچھ ملیں پرائیویٹ سسٹم پر چلتی رہی ہیں. لیکن صوبائی حکومت کی جانب سے یہ ہدایات تھے کہ آپریشنل کہ اگر اب بھی چلتے ہیں تو چلائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ عوام مستفیض ہوں. اچھا اور خاص بات یہ ہے کہ مارکیٹ میں اس وقت آٹے کی ریٹ ہمارا تو دار و مدار پنجاب پر ہے. پنجاب سے تقریباً کے پی میں جتنے بھی اضلاع ہیں پنجاب سے ہی آٹا آتا ہے اس لیے کہ گندم کافی نہیں ہے ہماری اپنے ضلع کی اور پورے صوبہ کی. تو یہ اس سے 2800-2900 پنجاب کا آٹا مارکیٹ ریٹ میں دستیاب ہے لوگ لے آتے ہیں. لیکن صوبائی حکومت کی جانب سے خاص کر خیبر پختونخوا کی سطح پر یہ فائدہ عوام کو ہے کہ وہی آٹا مل والے جو
कीमत मुकर्रर है हुकूमत की जानिब से वो 2190 रुपये है, यानी कि 20 किलो का एक तेला 2190 रुपये, और कंज्यूमर को ये तेला 2220 पे पहुंचेगा। दरमियान में 30 रुपये छोटे दुकानदार के लिए हुकूमत ने मार्जिन रखी है, जो कि नाकाफ़ी भी है और लोग इधर पे दरख्वास्तें ले रहे हैं, लेकिन वो ताउन के लिए कर रहे हैं। कल भी एक डीलर की टेलीफोन आई है कि आज मैं फी तेला 5 रुपये अपने जेब से सदका दे रहा हूँ। ये खान के डीलर है जो जी सदका जी दे रहे हैं। आड़ा रोड पर कल की बात है। तो टोटल जो इस वक्त हमारा गंदम का कोटा है वो 1750 बैग्स 100 kg के, वो हिदायत के मुताबिक इस तरह होता है कि ये जितनी भी मिलें ऑपरेशनल हो, चलती हो, अंडर SOPs उनको भी हमने एक फ्रेम दिया हुआ है, सूबाई हुकूमत ने एक फ्रेम दिया हुआ है कि ये शराइत वो पूरी करेंगे फिर बनाएंगे। अगर सर आज की बात की जाए सर जो मौजूद है जी। इस वक्त कितनी ऑपरेशनल है जो फंक्शन मिले? इस वक्त है 11 11 टोटल हमारी 13 मिलें हैं जी। और 11 ऑपरेशनल है। एक फ्लोर मिल चश्मा शुगर मिल नहीं है, जी जी इन मालिकों का है, ठीक वो फॉर अननोन रीजन वीट नहीं ले रहे हैं, ठीक वो अपना एक प्रोग्राम चला रहे हैं प्राइवेट का। ठीक और बाकी एक मिल जो है ना जो नसीब बस रोड पे है, नसीब वो नसीब भी कुछ नकसीर वजूहात पर इसलिए कि टेलीफोन किया था कि हमारी हालत कुछ सही नहीं है। बाकी मिलें 11 हैं ऑपरेशनल हैं, जो कि 3 इंडस्ट्रियल जोन में हैं और 2 बाईपास पर हैं। इस तरह अंदरूनी तौर पर सिटी के अंदर मेरे ख्याल में 3 से 4 मिलें वो भी चल रही है। अच्छा सर, इन मिलों में जो आप जैसे कह रहे हैं कि 11 जो हैं वो फंक्शनल हैं, इन मिलों में बाज़ मिलें ऐसे भी हैं जो सिर्फ जब ये ज़ख़ीरा आपकी जानिब से जारी होता है तो वो फ़ाल होती हैं, अदरवाइज़ वो पूरा साल बंद रहती हैं, इसकी क्या वजह है? पहले इस तरह होता था कि फंक्शनल और नॉन फंक्शनल डिक्लेयर करने के लिए हम एक रिपोर्ट करते थे, जिसमें ये शर्त होती थी कि गुज़श्ता तौर पर 6 महीने पहले ये मिल चली हो, 6 महीने तक यानी कि पहले 1 साल में यानी कि वो चलती रहे ऑपरेशन फंक्शनल। इसको इस दफ़ा हुकूमत ने खालिस अवामी रिलीफ की खातिर, चूँकि इसमें गैप बहुत ज़्यादा आया है, पहले कोटा दे नहीं रहे थे तो गैप इसमें बहुत ज़्यादा आया है, और इसी वजह से उन्होंने फिर ये शर्त ख़त्म कर दी सिर्फ ऑपरेशनल। यानी ऑपरेशनल से मुराद ये है कि आपका मिल पूरा साल बंद रहा है, अगर आज इस कंडीशन में आप बराबर करते हो कि हमें चलाकर दिखाते हो और ग्रीनिंग करते हो तो फिर आप ऑपरेशनल लेकिन हो। अमूमी तौर के ऊपर शिकायत यही रहती है कि इस साल नहीं है, हर बार यही होता है, बताया यही जाता है आपके डिपार्टमेंट की जानिब से कि 13 हैं, 10 है, इतने फंक्शनल है। जब कह रहे फिजिकली ग्राउंड के ऊपर जाया जाए तो वहाँ यही सिर्फ 3 से या 4 बल्कि 2, पहले तो 2 थे या 3 या 4 मिल्स होते हैं जो, लेकिन सिर्फ एक कोटा सिस्टम है, एक बिजनेस का प्रॉफिट कमाने का, वो कहा यही जाता है, इल्जामात लाए जाते हैं महकमा फूड की मिली भगत के साथ करोड़ों रुपए कमाते जो बिल मालकान होते हैं। माजी में ऐसा होता रहा है? नहीं, करोड़ों का तो नहीं कह सकते, इन्वेस्टमेंट तो ये करते ही हैं, इसलिए करते हैं। लेकिन इसको एक चीज़ है कि क्वालिटी के लिए भी हमने एक तनासब दिया होता है, यानी कि इस चीज़ को अब हम समझते हैं 70 और 18 और 12। इसका मतलब ये होता है कि वो यानी कि एक बोरी से 100 kg से वो 70 के तनासब से हमें आटा बना के देगा। उसमें लाजमी बात है थोड़ा चोकर होगा, वो सुपर फाइन की तरह नहीं होता है, और वो उस पर काम करते हैं। बाकी सब मिले जितना कोटा देते हैं वो अच्छा ऐप सिस्टम मुतारफ़ किया है, जिस तरह हम इनको गंदम देते हैं तो वो हमारे पास ऐप ठहरा है, हम इस पे डेली बेस पे वो मिलों के पीछे लिख। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये जो योमिया कोटा जो आपकी तरफ से जारी होता है, इसकी वो कितनी मिकदार में होता है हर मिल के लिए? ये ऐसे होता है इक्वल शेयर में। जी हुकूमत की जानिब से इसका ये SOPs है कि ये इक्वल शेयर में, फ़र्ज़ करो 3 है 4 है, जितने वक्त के मुताबिक मतलब है कि मिल चालू है, चल रहे हैं, तो उसको मतलब है कि फ़र्ज़ करो आज 11 है ना, तो 11 पे इसी कोटे को जिस तरह मैंने बताया है कि 1750 100 kg बैग इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फिर इसमें ये बात आ जाती है कि कभी कभी 1 मिल 2 मिल किसी नज़ीर वजूहात की बिना पर या टेक्निकल फॉल्ट पर
वो विलिंगली कहते हैं कि मुझे आज नहीं चाहिए कोटा। तो जब वो कोटा रहता है तो गंदम का, तो वो फिर इक्वली सब मिलों पर डिवाइड करते हैं। वो जितना वो रहता है वो भी इक्वली हाँ वो होता इस तरह है। जिससे सर आपने आटे की बात की है, चोकर के बारे में थोड़ा बहुत तो होता है, वो तो होता है क्वालिटी क्वांटिटी के हवाले से आप बात कर रहे हैं। लेकिन कभी सर फिजिकली तौर पर जैसा आपने कहा आपकी टीम में जाते हैं चेक करते हैं, कभी जो अवाम उन्नास है, अवाम है, कभी उनसे भी मालूम करने की कोशिश की है कि जो आप आटा खा रहे हैं, जो गवर्नमेंट के जो रेट है, क्या वाकई आटा जो है इसका मयारी भी है या नहीं है? मेरे ख्याल से तो जो हमारे तक शिकायत आती है और कई बार हमने इस पर आवाज उठाई है, शायद मेरे ख्याल इंसान नहीं खा सकते, लेकिन मजबूरी है, महंगाई है, मजबूर पे वो खाते हैं। शायद अगर आपको भी इस्तेमाल का कहा जाए या आपके डिपार्टमेंट के एहलकारान को या हमारे जो जिले इंतजामी अफसरान है दीगर डिपार्टमेंट, शायद वो आटा खाना भी पसंद ना करें उसकी अगर रोटी बनाई। आपका बड़ा बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है, और इस फोरम में शायद अगर मैं कुछ वजाहत कर लूँ तो इसका पब्लिक कोई और का सुन ले, लेकिन आप हकीकत माने कि अपने तौर पे फिज़िकली जिस तरह मुझे इंफॉर्मेशन मिलते हैं, एक आपकी वजह से नहीं, मुझे और भी मिले हैं, तो मैं उस मिल पे भी जाता हूँ डेली, अगर नहीं दूसरे दिन मैं इंस्पेक्शन भी करता हूँ उधर मिल में। जिस बंदे को दिया होता है उसके पास भी हमने चेक किए हैं, और इनके सैंपल, यानी ऐसे तो ज़ाहिरी तौर पर आटे का हम और आप भी फैसला कर सकते हैं कि हाथ में उठाए इसको दी, वो तो मतलब है कि मोटी बात में, लेकिन इसका जो एहसास नोयत है वो होता है लेबॉर्ट्री टेस्ट। तो वो टेस्ट के लिए मतलब है कि दो एजेंसियां हैं, एक हलाल फूड अथॉरिटी है और एक DFC है। तो हमने अपने तौर पे भी तमाम मिलों के मतलब है कि सैंपल एक बार तो किए हैं, वो लेबॉर्ट्री हमने रवाना किए हैं और बाकायदा उसके रजिस्टर पर है। जिस तरह हम गए हैं वो तस्वीरें भी शेयर की। इसके अलावा हमें तो बरमला सामने ऐसी कोई चीज़, दो मिलों का सिर्फ दौरान इंस्पेक्शन ये चीज़ मैंने नोट किया था, वो भी अपने तौर पे। अब भी मैं नहीं कह सकता हूँ कि वो मैंने सही कहा है कि नहीं, वो थोड़ा वो आटा मोटा था, मोटा इस तरह मैं जो देखता हूँ ना, तो मैंने उसको बोला इसका फ्लो मिल के अंदर मतलब है कि थोड़ा निज़ाम ठीक करके इसको बारीक कर लो, ताकि ये वो बाकी तो कलरिंग से जिस तरह वाइट होती है ऐसे। और कंप्लेंटों का मैं बता दूं, अब तक आटे से मुतालिक हमारे पास रिकॉर्ड पे है 5 कंप्लेंट है, बल्कि 6 कंप्लेंट है पेशावर से आई हैं। वो पेशावर ने एक एक्सेस लोगों को, पब्लिक को ये दिया हुआ है कि भाई आप DFC के पास ना जाए, हमें कंप्लेंट करें, आपकी कंप्लेंट हम फॉरवर्ड करते हैं रिड्रेसल के लिए। तो अब मेरे पास मोबाइल दोनों कड़े हैं और मैंने जवाब भी लिख दिया है। उन 5 कंप्लेंटों का नतीजा ये निकला है कि एक बंदे ने वो मेरा अपना मोबाइल सिस्टम भी बंद कर दिया। उसने बोला है कि मेरा कोई रिलेटिव था, मैंने उसको बोला आप इस तरह कर लो कि आपका आटे की क्वालिटी पर कंप्लेंट है, ये तो कोई ऐसी बात नहीं है, आप बिल मुशाफा आ जाओ, कोई सबूत भी तो ले आओ ना, ऐसी बातों पे हम नहीं जा सकते। इसलिए कि मिल वाले भी कहते हैं कि भाई आपके पास कोई कोजेंट ऐसी चीज़ मुझे दिखा दो कि मैं अजाला कर दूँ उस चीज़ का। अच्छा ये कंप्लेंट तो कर लेते हैं, तो फिर आगे मतलब है कि ये हमें ये आसानी फराहम नहीं करते कि जिस तरह मैं कहता हूँ मैं इधर पे दिन है और बैठा हुआ हूँ, कोई ये साबित नहीं कर सकते कोई आटा मतलब है कि आप ले आओ कंप्लेंट रिड्रेसल के हमारे। क्या होगा सर अगर कोई शिकायत करना चाहे? जी वो इधर आपके ऑफिस आया? बिल्कुल कुल्ला, वो तो हमने गेट पे पर्दा भी लगाया हुआ है, किसी को इंशाल्लाह इस सिलसिले में डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। इसी के साथ ज़िमनी सवाल सर ये है कि जिस तरह आपने कहा कि कोटा सिस्टम में मुख्तलिफ जो मिल्स हैं उनको दिया जा रहा है ना रोजाना की दुनिया, तो उनके लिए क्या SOPs हैं? जो आगे दुकान है, जो शॉप्स वगैरह गली मोहल्ले में, वो मिल्स वालों को उनका क्या तरीकेकार, क्या मैकेनिज्म बनाया कि वो किस तरीके से दे रहे हैं? कोटा सिस्टम में कोई लिमिटेड उनकी जिम्मेदारी सिर्फ इस हद तक है कि इनको डीलर दिए हैं हमने, यानी कि इधर पे एप्लीकेशन आते हैं, वो डीलर नॉमिनेशन डिप्टी कमिश्नर और मैं इसको बना के अप्रूवल के लिए जनाब DC साहब को भेजता हूँ। तो वो फिर मतलब है कि इनके पास ऐसी भी कार्ड हैं जिस तरह गुज़श्ता लिस्ट हैं वो उन्होंने वेरीफाई भी किए होंगे। तो वो जब हम एक दफ़ा फाइनल कर लेते हैं तो इधर पे फिर इनको एक्सेस देते हैं ऐप का, उसका नंबर लिख के फिर उस बंदे को बुला लेते हैं डीलर को। इधर पे बाकायदा ऐप पर ट्रेनिंग दी जाती है कि भाई आपने एक तेला अगर भेजना है, फ़र्ज करो अमान को देना है या XYZ को, तो उसका शनाख्ती कार्ड के नसी नंबर और ये चीज़ें करनी है। अच्छा एक तरफ तो ये जारी है, मिल वाला तो सिर्फ ये जिम्मेदारी है कि वो जितना कोटा हम मुकर्रर करें कि इस बंदे को 40, 45, 50 वो हमने
किसी किसी मिल के पास मतलब है कि वो आटा ज़्यादा होता है। अवाइल में ये लोग मतलब है कि कई वजूहात होती, तकलीफ़ें बहुत है, कई वजूहात होती थी, वो कहते थे कि ये मिल दूर है। अब मैंने तो एक बंदे को बोला है कि चलो वो मिल आपके लिए दूर है, अगर मैं सारे इस मिल पे डाल दूँ तो उस मिल का हम क्या करें? अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये जो महकमा खुराक की जानिब से आपने जो पॉइंट्स मुख्तस किए जी हैं हाँ। आटे के लिए, जी हाँ। आटे की फ़रोख्त के लिए, सस्ते आटे की, तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं, ये जो डीलर हैं, ये लाइसेंस होल्डर हैं या ये आम शहरी भी ये दरख्वास्त दे के आपसे आटा ले सकते हैं? ये तमाम के तमाम लाइसेंस होल्डर हैं। अगर किसी को पहले किसी वक़्त में इस दफ़्तर से लाइसेंस का अजरा किया गया है जिसकी दुकान नहीं है, अब मुझे तो नहीं पता, तो उसकी बाकायदा मतलब है कि हम तहकीकात करते हैं, चेक कर लेते हैं कि आया वाक़ई दुकान है कि नहीं। सिटी पर हमने ज़्यादा फ़ोकस किया हुआ है, इसलिए कि सिटी इस तरह बहुत ज़्यादा वो बड़ी है ना, और ऐसे वीसी वाइज़, एनसी वाइज़ हमने कोशिश की है कि हर जगह पे हम अवेलेबिलिटी मुमकिन बना दें। हत्ता कि अब तक मतलब है कि हमारे पास जो दरखास्तें आज भी आ रही हैं, लेकिन इनको जमा करके करके फिर डीसी साहब के पास ले जाऊँगा, फिर उधर पे मतलब है कि या एसी को वो हुक्म करता है मुझे। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये जो गंदम का आपकी जानिब से जो गंदम मिलों को फराहम की जा रही है, इसका इजरा हो चुका है या आइंदा होगा? और अगर हो चुका है तो किस तारीख से हुआ है? ये जी 22 तारीख से इसका इजरा हो चुका है, 22 तारीख से। आज बाईस आज 18 यानी कि हाँ, तकरीबन एक माह होने वाला 22 है। जनवरी से। 22 जनवरी से। हाँ, और ये बस सूबाई हुकूमत पर मुनहसर है कि वो, वैसे तो ये जारी होगा, तब तक तो जारी होगा जिस तरह मतलब है कि हमारे पास ये ज़ख़ीरा है। ये तो ज़ख़ीरा है कितना सर इस वक्त? जिस हिसाब से कहा ज़ख़ीरा- हमारे पास तो कमी होती है ना। ज़ख़ीरा इस तरह है कि ये तो बड़ा सेंटर है, जी जी। PRC है, प्रोविंशियल रिजर्व सेंटर है, तो इसमें तो गंदम ज़ख़ीरा इसलिए भी किया जाता है कि ये KP लेवल पर दूसरे नंबर पर है, पहले नंबर पर पेशावर और साहिल, तो यहाँ से और ज़िलों को भी ये लोकेशन होती है। जिस तरह मतलब है कि उधर पेशावर से हाई अप से आर्डर आ जाता है, तो यहाँ से उनको मंजूरी होती है पीआर टू पीआर बेसिस, जिस तरह हम वो हमसे गई है, तो जितनी बोरी होती है वो उनको भी देते हैं। और ये अच्छा सर, अगर बात की जाए मिलों के, जैसे आपने कहा है कि कोड 11 फिजिकली तौर पे आपने कहा है फंक्शनल है, ऑपरेशनल, अगर कोई शिकायत आती है जी या मीडिया वाले जिस हमें या हमारे और दोस्त होते हैं कि फलां जो मिल है वो आपके खाते में है कि ऑपरेशनल है, वो नहीं है, तो आप हमारे साथ चलेंगे सर शिकायत पर मौके पर जाएं कि वाकई इसको चेक किया जाए ऑपरेशनल है या नहीं है? बिल्कुल एनी टाइम आपके साथ, तो आपको मैं तो ये एक्सेस दूंगा, सिर्फ ये इंगेजमेंट हमारी होगी जिस तरह कल परसों से हम और आप लाइन पे थे ना। बाकी वी हैव नो ऑब्जेक्शन एनी टाइम किसी भी जगह पे, इसलिए कि मुझे मेरे पास अभी तक ये कहना तो नहीं चाहिए, इसलिए कि मेरे पास एक नंबर सेव नहीं है, इसलिए कि मैं आया भी नया हूँ, 3-4 महीने हो गए। बहरहाल ऐसी कोई अगर कंप्लेंट होती है और फिर ये है कि हम इस पे अपना तहकीकात मुकम्मल करते हैं, फिर इसका अपना लॉ है और अपनी SOPs है, अगर वो वायलेशन कर रहा है तो उसमें सजा या जजा हाँ, क्या होगी? गुज़श्ता तौर पर मैं जिन जिन ज़िलों पे रहा हूँ, मेरा तो अल्लाह के करम से ये चीज़ ट्रांसपेरेंट होती है। लकी मरवत रहा हूँ, उधर पे बिलों पे जुर्माना भी आयद किया है, सील भी किए हैं, बंद भी किए हैं। साउथ वजीरिस्तान पे रह चुका हूँ, उधर पे मिलों को वायलेशन पर बंद भी किए हैं, कोटा भी मुअत्तल किया है, जुर्माना भी लगाया है भारी, और लाइसेंस भी मंसूख किया है। वो फिर अपने एक तरीक़ाकार होता है कि वो फिर अपील करते हैं डायरेक्टर साहब को। सर ये बताइएगा कि ये सस्ते आटे की फराहमी के लिए अब तक कितने पॉइंट आपने मुख्तस किए हैं? ये तकरीबन इधर पे मैं आपको बता दूं 102 पॉइंट, 102 जगहों पे ये आटा दस्तयाब होता है। ये पूरे डिस्ट्रिक्ट में या तहसील? ना पूरे डिस्ट्रिक्ट। असल में सिटी में कितने होंगे सर? सिटी में अगर सिटी में ज़्यादा है, ये तो फिर तफसील हमारे पास अलग पड़ी होगी ना। हाँ, वो अलग होगी तकरीबन। सर मैंने यूनियन कौंसल, उसी से मैं बिलोंग करता हूँ। जी हाँ जी। तो यूनियन कौंसल 1 में मुझे ये कोई आपका ऐसा पॉइंट नज़र नहीं आया।
کنفرم کرتے ہیں پھر بالکل مطلب ہے کہ ادھر کرتے ہیں. یہ تو ہماری ایس او پیز ہی لوگوں کو شاید معلوم بھی نہیں ہے کوئی پوائنٹس بن چکے ہیں ابھی تک مائرنا کے حوالے سے. یہ اصل بات یہ ہے کہ لوگوں کو علم بھی علم نہیں بھی ہے. نہیں ہے, لوگ جو مستفید ہو جائیں اس مہنگائی میں, کوئی سستا آٹا نہیں مل رہا. ہاں تو لازمی بات ہے, مطلب ہے کہ یہ تو اس کے لیے کوئی آپ کے پاس سر کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے, منادی وغیرہ ہو, اویئرنیس ہو, یا جس طرح اپنے سوشل میڈیا بھی آج کل ہے, لوگوں کو معلوم ہو سکے کہ اتنے پوائنٹس تو بن چکے ہیں, کب سے آٹا بھی جاتا ہے, یا یہ نہ ہونا وہ مل والی ڈبہ کر رہے ہوں سارا مال. پورا ڈیٹیل ہمارے اب یہ دیکھیں نا کہ 570 بوری کے قریب ہر مل جو ہے وہ 100 kg والی, وہ 100 kg والی وہ بنا رہی ہے, اور اگر ایک تو آپ 20 کلو میں کنورٹ کریں تو میرے خیال میں 1700 سے اوپر بڑھ رہے ہیں ڈیلی کے. تو یہ 1720 تھیلے اب 11 ملیں آپ کہہ رہے ہیں فعال ہیں, اور 1720 کے قریب ہر مل جو ہے وہ 20 کلو کا تھیلا جو ہے وہ فراہم کر رہی ہے. تو ترجیحات تو یہ ہونی چاہیے تھی کہ یہ جو ہے نا یو سی وائز پہ آپ ایک نہیں بلکہ 2 پوائنٹ رکھتے, کیونکہ ایک یو سی کی آبادی جو ہے اگر آپ اس کو دے لیں کہ کسی کی 30,000 ہے, کسی کی 35,000 ہے. آپ کی بالکل درست ہے. اصل میں یہ پروگرام پہلے گزشتہ بھی چلا ہے, یہ اب کوئی تو پھر ہمارے وہ شرائط پورے نہیں کر سکتے جس طرح فوڈ گرین لائسنس, بلکہ بات تو یہ ہو رہی تھی کہ کچھ سیکیورٹی بھی ہم ان سے رکھ لیں, لیکن سیکیورٹی رکھنے کے لیے کوئی طریقہ کار نہیں ہے سرکاری کہ ہم کہتے ہیں کوئی سیاسی انفلوئنس بھی ہوتا ہے, وہ جو تو دیتے لازمی ہیں ہے. وہ بیٹھ کے وہ پروفٹ کما لیتے ہیں. تو بس جی وہ کہتے ہیں نا کہ مسائل تو ہیں بہت زیادہ, ہم بھی یہ نہیں کہتے, لیکن ہم حد الوسع ابھی 10 ڈیلروں کا یہ کچھ دن ہوئے, میں نے اپنے انسپیکٹر کو بولا ہے کہ بھائی یہ ایپ سے کم از کم مجھے ویریفائی کر کے بتاؤ کہ جو یہ نام لکھے ہیں جو بینیفیشریز ہیں ان کا پوچھ لو, ٹیلی فون پر کال کر لو, یہ اتنا تو پوچھ لو کہ بھائی آپ کو آٹا اس طریقے کو ملا ہے آپ کے پیچھے. اس میں سے 10 بندے پھر نکلے ہیں جو کہ کچھ مشکوک سے تھے, ہم نے ان کا کوٹا معطل کیا ہے, ان پہ فائن لگایا ہے, اس لیے کہ سرکار میں غلطی تو مانی نہیں جاتی ہے. وہ اصل میں یہ تھا کہ کسی نے کہا ہے کہ میرا بچے کے ہاتھ میں تھا موبائل, تو اس نے نام ڈالا نہیں ہے, اس طرح ABC ڈالا ہے, اور کسی کو پتہ نہیں تھا کہ یہ خان کی جگہ ہم نے یہ چیز ڈالی ہے. بہرحال لیکن اگر پہلے بات کی جائے FIR دی گئی تھی, اور اس سے لوگ بڑے مطمئن بھی ہوئے تھے کہ اور دکانداروں کو بھی ایک خوف تھا جو پوائنٹ ڈیلر تھے کہ اگر میں اس کے اندر 2 نمبری کرتا ہوں تو FIR ہوگی. اور زبیر بھائی اس میں ایک بات میں یہ بھی اضافہ کرنا چاہیے کہ کچھ تاجر تنظیموں کے وہ قریبی تھے, رشتے دار بھی تھے, ان پہ FIR ہوئی تھی. تو سر کیا وہ بھی اس دفعہ اسی آٹے سے وہ یہ ایک مرتبہ کوئی اگر بلیک لسٹ ہو جاتا ہے, جو پکڑا جاتا ہے, جس طرح آپ نے کہا سیل کرتے, تو اس کو بلیک لسٹ بھی کرتے ہیں پھر دوبارہ وہ سیاسی کوئی. بالکل, میں تو FIR کا تو یہ حال ہے ڈیرا کے لیول پر کہ مختلف تھانے ہیں, اور میرا قلعہ یہ ہے DPO صاحب کو میں ملا تھا کہ ہمارے مختلف چیزوں میں FIR آپ کے پاس آتی ہیں, اور وہی ملزم پھر پروفیشنل بن جاتے ہیں. پھر مطلب ہے کہ کچھ لوگ تو ہمیں اس طرح بھی کہتے ہیں کہ آپ کے FIR کی طاقت بھی ہم نے دیکھ لی ہے, یعنی جو مراسلہ بھیجتے ڈپارٹمنٹ جہاں پولیس FIR نہیں دیتے. بالکل more than 50 میرے خیال میں وہ بندہ بھی موجود نہیں ہوگا, لیکن میں انشاءاللہ وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ کم از کم more than 50 FIR ایسے بھی پڑے ہوں گے جن پہ آج تک ہم نے مطلب ہے کہ کئی لیٹر لی گئے ہیں. میں کئی دفعہ گیا ہوں DSP کے پاس, متعلقہ تھانوں کے پاس ہم جاتے ہیں, SHO کو ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ DPO سے ہم, پھر ہمیں دوبارہ کہتے ہیں, ہم پھر فرسٹریٹ کرتے ہیں, پھر ان کو دے دیتے ہیں.